السلام علیکم، دس از عرفان جی۔ آج ہمارا ڈیجیٹل مارکیٹنگ کمپلیٹ ایڈوانس لیول پریمیم لیول کورس کا یہ لیکچر 3 ہے، جس میں ہم اپنا سیکنڈ ماڈیول ڈسکس کریں گے، جو کہ ہمارا سوشل میڈیا مارکیٹنگ کا ہے۔ سوشل میڈیا مارکیٹنگ کا اگر ہم ڈسکس کریں کہ سوشل میڈیا مارکیٹنگ کیا ہے، تو سوشل میڈیا مارکیٹنگ ہے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کو استعمال کرتے ہوئے جو ہم مارکیٹنگ کرتے ہیں، وہ سوشل میڈیا مارکیٹنگ کہلاتی ہے۔ مثال کے طور پہ ہم اگر بات کریں سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہمارے پاس کون کون سے ہیں۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم، جیسا کہ آپ سب کو اس کے بارے میں کمپلیٹ نالج ہے۔ سوشل میڈیا بیسیکلی جو ہے وہ ہے ایسا میڈیا جو انٹرنیٹ کا استعمال کرتے ہوئے ہمیں سوشلی ایک دوسرے کے ساتھ کونیکٹ کر دے۔ سوشل میڈیا مارکیٹنگ یعنی کہ ایس ایم ایم، ہم ادھر اس کو مزید یہ ایکسپلین کر لیتے ہیں۔ سوشل میڈیا مارکیٹنگ، تو سوشل میڈیا مارکیٹنگ میں جو ایسا میڈیا ایسا پلیٹ فارم جس میں ہم سوشلی جو ہے نا ایک دوسرے کے ساتھ کونیکٹڈ ہوں، ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹڈ ہوں، ایک دوسرے کو سوشلی ہمیں جو انٹرنیٹ کے ذریعے جو چیز ہمیں کنیکٹ کرے، سوشل میڈیا کے ذریعے جو کنیکٹ کرے اس کو ہم سوشل میڈیا کہتے ہیں۔ اور سوشل میڈیا مارکیٹنگ کیا ہے؟ اسی انٹرنیٹ کے ذریعے انہی پلیٹ فارمز جو ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹ کر رہے ہیں، ان پلیٹ فارمز پہ جو ہم مارکیٹنگ کرتے ہیں وہ ہماری سوشل میڈیا مارکیٹنگ کہلاتی ہے۔ تو سوشل میڈیا مارکیٹنگ میں پہلے نمبر پہ ہم عظیم کر لیتے ہیں کہ ہمارے پاس ہے فیس بک، اور اس کے بعد ہمارے پاس اسی فیس بک کا ہی دوسرا پلیٹ فارم ہے انسٹاگرام، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے ہمارے پاس کہہ سکتے ہیں کہ جی لنکڈ ان، اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے ٹویٹر، اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے اپنا یہ اسنیپ چیٹ، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم بات کر سکتے ہیں کہ یہ ٹک ٹاک۔ یہ کچھ ایگزامپلز ہیں اس کی اپنا سوشل میڈیا کی۔ تو یہ سارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں، اور ہم ان سب ہی پلیٹ فارمز کی مارکیٹنگ یہاں پہ ڈسکس کریں گے کہ ان پہ کیسے کر سکتے ہیں۔ تو ان سب پہ مارکیٹنگ کرنے سے پہلے آپ کو پتہ ہونا چاہیے ان پلیٹ فارمز کی نیچر۔ آپ جب ایز اے ڈیجیٹل مارکیٹر کام کر رہے ہوں گے تو آپ کو کسٹمر کی اسٹریٹجی بنانی ہوتی ہے اس کی ایڈ کی، کہ کسٹمر کی ایڈ کے اکارڈنگلی کون سے پلیٹ فارم پہ وہ ایڈ زیادہ اچھی چلے گی۔ مثال کے طور پہ کسٹمر کا پروڈکٹ جو ہے وہ ہے اس کا ہم کہہ لیں کہ گارمنٹس کا، یا پھر وہ ہے کاسمیٹکس کا، تو اس کے اکارڈنگلی اور پلیٹ فارم یوز ہوگا۔ کسٹمر کا کی پروڈکٹس جو ہیں وہ ہیں بڑی بڑی کمپنیز کے اکارڈنگلی، بڑے بڑے بینکنگ سافٹ ویئر، بڑے بڑے سافٹ ویئرس کے ریلیٹڈ، اس کے لیے اور پلیٹ فارم ہے۔ کوئی ڈونیشن اکٹھی کرنی ہے، کوئی سوشل ایشوز ہائی لائٹ کرنے ہیں، اس کے لیے اور پلیٹ فارم ہے۔ کوئی ہم نے مینس کہ اویئرنیس، برانڈ اویئرنیس لینی ہے، لوگوں کو بتانا، اس کے لیے اور پلیٹ فارم۔ تو اس کا ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ کیسے۔ تو جو فیس بک ہے، یہ ایک جرنلی اگزامپل دے رہا ہوں۔ ہم اسٹارٹ کرتے ہیں اس سے اپنا، میں آپ کو بتاتا ہوں سب سے پہلے لنکڈ ان سے۔ لنکڈ ان جو ہے ہم کو ہائی لائٹ بھی کرتے جاتے ہیں تاکہ جو ہمارا کور ہو جاتا ہے۔ لنکڈ ان ہم یوز کرتے ہیں اپنا جو ہماری بی ٹو بی ایڈ ہوتی ہیں، یعنی کہ بزنس ٹو بزنس ایڈز ہوتی ہیں، موسٹلی لنکڈ اس کے لیے یوز ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہاں پہ جتنے بھی ہیں بزنس پروفیشنلز ہیں لنکڈ ان پہ۔ اب بزنس پروفیشنلز ہیں مینس کہ آپ اگر لنکڈ ان پہ دیکھیں، وہاں پہ جتنے بھی لوگ ہیں وہ کوئی مینیجر ہیں، کوئی اپنا وہ ہیں ڈائریکٹرز ہیں کسی ادارے کے، کوئی کسی ادارے کے مینیجر ایچ آر ہیں، کوئی کسی اس میں ہے۔ ہم اگر ادھر میں آپ کو ساتھ میں یہ لنکڈ ان اوپن کر کے بھی دکھا دیتا ہوں کہ میں لنکڈ ان اوپن کر لیتا ہوں، تاکہ جب تک یہ لنکڈ ان اوپن ہوتا ہے آپ کی ساتھ ساتھ بتاتا بھی جاؤں۔ لنکڈ ان پہ ہم اس لیے بی ٹو بی ایڈ لگائیں گے، بزنس ٹو بزنس، جن کے ایک کمپنی بزنس ٹو بزنس مارکیٹنگ کیا ہے؟ جب ایک کمپنی کسی دوسری کمپنی کو کوئی پروڈکٹ سیل کرے، وہ بزنس ٹو بزنس مارکیٹنگ ہے، بی ٹو بی مارکیٹنگ ہے۔ اب بی ٹو بی مارکیٹنگ کے لیے کیونکہ لنکڈ ان پہ تمام بڑی کمپنیز ہیں، تمام بڑے ادارے ہیں، بڑی کمپنیز کے مینیجرز اور مینجمنٹ لیول کے لوگ اس میں بیٹھے ہوئے ہیں، یعنی کہ ان کے اکاؤنٹس ہیں۔ تو لنکڈ ان پہ اگر ہم نے کوئی ایکسپوز کر لیتے ہیں کہ کسی سافٹ ویئر ہاؤس کی ہم نے ایڈ لگانا چاہ رہے ہیں،
और वो अपना सॉफ्टवेयर डिफरेंट कंपनीज के अकॉर्डिंगली सेल करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हम लिंक्डइन पे लगाएंगे, क्योंकि उसके लिए हमें फेसबुक अच्छा रिजल्ट नहीं देगी। क्यों? क्योंकि फेसबुक पे तो जनरल ट्रैफिक है। ओवरऑल हम बात करें, हमारी ट्रैफिक देखें, आप अपने रोज़मर्रा ज़िंदगी में देखें, हमारी ओवरऑल जो है हमारे करीब करीब लोग फेसबुक पे हर बंदा है। लेकिन अगर हम बात करें लिंक्डइन पे तो बहुत कम है। जो भी हैं आपको इधर प्रोफेशनल नजर आएंगे। अभी मैं इधर लिंक्डइन ओपन कर रहा हूँ, मेरे पास आज थोड़ा इंटरनेट इशू है, दैट्स वाई ये थोड़ा स्लो ओपन हो गया। तो जब तक ये ओपन पे हम आगे देखते हैं, तो लिंक्डइन पे जितने भी हैं ये बिजनेस प्रोफेशनल्स बैठे हुए हैं, तो लिंक्डइन पे जो आप ऐड लगाएंगे वो बिजनेस टू बिजनेस होगी। बिजनेस टू बिजनेस में यानी कि वो आपको उस हिसाब से रिजल्ट्स देगी। वो एग्जांपल जो मैं पहले दे रहा था कि एक सॉफ्टवेयर हाउस है, उसने एक सॉफ्टवेयर बनाया है किसी कंपनी के रिलेटेड, उनके जो है हम कह सकते हैं कि स्टाफ मैनेजमेंट, उनके जो है इन्वेंट्री मैनेजमेंट या किसी भी हवाले से। तो आप यहाँ पे जो ऐड लगाएंगे वो तमाम मैनेजर्स को नज़र आएगी। अब आपने दूसरी चीज़ क्या है कि मैंने जैसे आपको बताया था कि बेसिकली हमारी ट्रेडिशनल और डिजिटल मार्केटिंग में फ़र्क ही इस चीज़ का है कि यहाँ पे आप इंटरेस्ट, एरिया, जेंडर, लोकेशन ये सारा कुछ सिलेक्ट करते हैं, तो आपकी टारगेटेड ऑडियंस होती है जिसको उस चीज़ की नीड है, उस ऑडियंस को आप अपनी एड शो करा रहे हैं। तो अब आपकी ऐड जो है एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे जहाँ पे हैं ही सारे प्रोफेशनल्स, उस पे शो हो और उनको उनकी नीड के मुताबिक आपको जो है मार्केट करें, उनको प्रोडक्ट का बताएं, तो उसमें मोस्टली चांसेस हैं कि वो आपसे प्रोडक्ट लेंगे। उसके बरअक्स हम अगर बात करें फेसबुक पे एक अगर उन प्रोफेशनल्स ने जिन्होंने लिंक्डइन का अकाउंट बनाया हुआ है, उन्होंने फेसबुक पे भी बनाया हुआ है, तो फेसबुक पे उनका मकसद जो है वो है एक हम सिंपल वर्डिंग में कह सकते हैं टाइम पास या इंटरटेनमेंट। तो वो फेसबुक पे इतना ज़्यादा इफेक्टिवली नहीं वो होगा इसका रिजल्ट, और इस पे आपको ओवरऑल ट्रैफिक जो है वो एक मिक्सअप मिलेगी। तो लिंक्डइन जो है हमेशा बिजनेस टू बिजनेस मार्केटिंग के लिए यूज़ होती है। और इसके साथ साथ जो ट्विटर है, हम इसके बाद ट्विटर मार्केटिंग की बात करेंगे। ट्विटर हमेशा यूज़ होती है कि आपने कोई अपना इशू हाईलाइट करना है, वो इशू जो है सोशल हो सकता है, वो कोई भी मीन्स के सियासी, समाजी, किसी भी एरिया की कोई इशू हाईलाइट करना है, किसी एनजीओ की ऐड लगानी है, कोई आपने डोनेशन इकट्ठी करनी है, तो उसके लिए आप क्या करते हैं, आप ट्विटर एड्स लगाते हैं। अब ट्विटर एड्स बल्कि हम इसको ऐसे कर लेते हैं, ये इस तरह से ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ट्विटर एड्स आपको आप लगाते हैं यानी कि ये इश्यूज, सोशल इश्यूज हाईलाइट करने के लिए, एनजीओज के लिए और इन सब के लिए। अब ये किस तरह से बेनिफिट आपको देंगे? ये बेनिफिट इस तरह से देंगी, अब मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। आपने आपके एरिया में ना कोई यानी कि प्रॉब्लम है, सपोज कर लेते हैं वहाँ पे पानी का इशू है जो कि बहुत अरसे से हल नहीं हो रहा। वहाँ पे हेल्थ का इशू है जो कि वहाँ की हॉस्पिटल्स अच्छी रिस्पॉन्स नहीं कर रही। उसके लिए आप क्या करें, आप इस पे ट्विटर पे जाके ऐड लगा दें। अब वो ऐड का क्या होगा, वो ऐड क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को नज़र आएगी और उस इंटरेस्ट के रिलेटेड, जिस इंटरेस्ट के रिलेटेड आपने ऐड लगाई होगी। अब सपोज कर लेते हैं आपने वो ऐड लगाई हॉस्पिटल के रिलेटेड, इसमें हम बात कर लेते हैं हॉस्पिटल के। आपके सिटी में हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो है उस पर अच्छी सर्विसेज नहीं दी जा रही है, एक मैं एग्जांपल बता रहा हूँ जस्ट। तो वहाँ की ऐड लगाते हैं, तो उसमें आपने जितने भी ये सिलेक्ट करने हैं, आप पॉलिटिशियन सिलेक्ट करने हैं, आपने हेल्थ मिनिस्टर्स के रिलेटेड, हेल्थ मिनिस्ट्री के रिलेटेड लोगों को यानी कि हेल्थ के रिलेटेड टारगेटेड ऑडियंस बनानी है। तो अब वो जो ऐड जाएगी वो तमाम जर्नलिस्ट्स को शो होगी, उनके रिलेटेड अगर वो आप करेंगे, वो मिनिस्टर्स तक जाएगी। अब होगा क्या, वो उनमें से किसी एक दो लोगों ने भी शेयर कर लिया हाई अथॉरिटी पे, तो वो इशू फौरन से हाईलाइट हो जाएगा और उसको फिर रीट्वीट्स भी मिलेंगी और वो इशू रिजॉल्व हो सकता है। सेम ऐसे एनजीओज के रिलेटेड, सेम ऐसे डोनेशन के रिलेटेड, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, देखें लिंक्डइन और ट्विटर ये दोनों सेलिब्रिटीज के लिए है, या हम ऐसे कह सकते हैं प्रोफेशनल्स के लिए। लिंक्डइन जो है ये बिजनेस प्रोफेशनल्स के लिए है, ट्विटर जो है ये है बिजनेस, लिंक्डइन जो है वो बिजनेस प्रोफेशनल्स के लिए है, ट्विटर जो है ये सेलिब्रिटीज के रिलेटेड, सेलिब्रिटीज दोनों
चाहे वो एक्टर्स हों, वो चाहे पॉलिटिशियंस हों, ट्विटर दोनों के रिलेटेड है। तो आप यानी कि इन पे इस तरह के लगा सकते हैं, लिंक्डइन पे बिजनेस टू बिजनेस, और ट्विटर पे ये हो गए। इसके बाद आते हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम। अब जब आपने कोई कॉस्मेटिक्स के रिलेटेड या कोई हम कह लें कि प्रोडक्ट्स लाइक गारमेंट्स के रिलेटेड ऐड लगानी हो, तो उसके लिए आपको इंस्टाग्राम अच्छा रिजल्ट देगी, और साथ में स्नैपचैट और टिकटॉक भी अच्छा रिजल्ट देंगे। जहाँ पे आपने जर्नल कोई ऐड लगानी है किसी चीज़ के मतलब लोगों को बताना है, जर्नल वैसे ही रीच के लिए, कोई रेस्टोरेंट है, कोई ऐसी चीज़ है, उसके लिए आपको फेसबुक रिजल्ट देगी। आई थिंक आपको अब सोशल मीडिया के ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे, हो गए होंगे कि सोशल मीडिया क्या है। ऐसा प्लेटफॉर्म जो इंटरनेट के ज़रिए हमें एक दूसरे के साथ जोड़ें, वो सोशल मीडिया है। और इसकी मार्केटिंग क्या है, उन प्लेटफॉर्म पे जो हम एड्स लगाते हैं, वो सोशल मीडिया मार्केटिंग है। सोशल मीडिया मार्केटिंग में फिर फेसबुक मार्केटिंग है, जो कि जर्नल आप एड्स लगाते हैं, इसमें भी इंटरेस्ट एरिया जेंडर लोकेशन सिलेक्ट करते हैं हम। लेकिन इसमें जर्नल मकसद ये है कि इसमें ओवरऑल ट्रैफिक है, तो ये हमें ओवरऑल के रिलेटेड। इंस्टाग्राम पे हमें गारमेंट्स और जो है कॉस्मेटिक्स के रिलेटेड अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। लिंक्डइन पे हमें बिजनेस टू बिजनेस यानी कि डील्स, जो प्रोडक्ट्स हों, सर्विसेज हों, वो बिजनेस टू एक कंपनी से दूसरी कंपनी तक हमने सेल करने हैं, उसकी एड्स अच्छा रिजल्ट देती हैं। ट्विटर पे हमें सोशल इश्यूज, एनजीओज, डोनेशन वगैरह का अच्छा रिजल्ट मिलता है। स्नैपचैट और टिकटॉक पे भी हमें गारमेंट्स और ये जो हमारे हम कह सकते हैं जो बिजनेस टू कंज्यूमर जो है, कस्टमर जो हैं, प्रोडक्ट्स, इनकी एड्स अच्छा रिजल्ट दे जाती हैं। तो फेसबुक एड्स पॉलिसी तो और मेटा एड्स, आप इनको मेटा एड्स पॉलिसी भी कह सकते हैं, ये मेटा की भी हो सकती हैं, इनके मेटा बोथ इंस्टाग्राम और फेसबुक दोनों के नाम से, क्योंकि ये दोनों प्रोडक्ट मेटा की ही हैं। फेसबुक ने जैसे लास्ट ईयर अपना नेम अपडेट किया था। जी, ये मेरे पास आ गया। अब देखिए लिंक्डइन पे मेरा सबसे पहले मुझे फर्स्ट मोमेंट बैंक लिमिटेड की ऐड शो हुई। और उसके बाद जो है मेरे पास ये देखें, कोई शुएब अहमद खान है जो कि यूनिट हेड है फ्रॉड मॉनिटरिंग यूनिट के किसी बैंक के। अगर हम इनकी ये प्रोफाइल ओपन कर लेते हैं और इस पर क्लिक करते हैं, देखते हैं, ये जो है अस्करी बैंक में है, फ्रॉड मैनेजमेंट यूनिट के यूनिट हेड हैं। और असली बैंक में है, कराची यूनिवर्सिटी से इन्होंने डिग्री की हुई है। और ये इनके रिलेटेड डिटेल्स हैं। तो इन्होंने जॉब का भी ये लगाया हुआ है कि ये जॉब कोई करना चाहता तो सिंपल हम ये जॉब की डिटेल्स अभी छोड़ेंगे। और साथ में हम देखते हैं फर्दर आगे। ये होम पे क्लिक किया, यहाँ पे आप देखें नेक्स्ट है ताहा अल्ताफ़, जो कि असिस्टेंट रिलेशनशिप मैनेजर हैं। और अदनान अमीन, ये सीए हैं। और ये बजट और कॉस्ट के रिलेटेड। और ये कोई सीईओ हैं और फाउंडर और मैनेजिंग पार्टनर्स हैं क्रेस कॉर्पोरेशन के। और इसके अलावा आपको यहाँ पे और भी ऐसे जो है मैनेजर्स और इस लेवल के लोग मिलेंगे। और ये एक हैं कोई सर डायमंड और एस एम अब्दुल्ला एच बी एल के। ये और ये हैं कोई जॉब कर रहे हैं, उनके मैनेजमेंट लेवल पे कोई होंगे। तो यहाँ पे आपको मोस्टली जो लोग नज़र आएंगे, ये सारे मैनेजमेंट लेवल के लोग नज़र आ रहे हैं लिमिटेड पे। जो चीज़ मैं उस टाइम बताना चाह रहा था कि यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे एचआर मैनेजर्स भी हैं, यहाँ पे आईटी मैनेजर्स भी हैं, आईटी डायरेक्टर्स भी हैं, और एचआर डायरेक्टर्स भी हैं। तो आप यहाँ पे अगर ऐड लगाएंगे, इन्वेंट्री मैनेजमेंट डायरेक्टर्स भी हैं और उसकी भी टीम है। तो अब जब आप उनकी ऐड लगाएंगे तो वो उन लोगों को शो होगी, और उनकी नीड है अगर, तो वो फिर आपसे वो चीज़, वो प्रोडक्ट, वो सर्विसेज लाजमी लेंगे। तो लिंक्डइन एड्स आपको ऐसे समझे कि बिजनेस टू बिजनेस एड्स में बेनिफिट देगी। और उसके बाद अगर हम बात करें, जो हम उस टाइम देख रहे थे कि मेटा एड्स यानी कि फेसबुक एड्स जो हैं, फेसबुक पे वो जर्नल पर्पस के लिए, और इंस्टाग्राम पे वो स्पेसिफिक मोस्टली हमें
गारमेंट्स और कॉस्मेटिक्स के रिलेटेड बेनिफिट देंगी ओवरऑल। जर्नल की अगर हम एक कुछ हद तक बात करें, और ऐसे स्नैपचैट पे और उस पे टिकटॉक पे भी, स्नैपचैट पे तो मोस्टली हमें गारमेंट्स वो जो है कॉस्मेटिक्स के रिलेटेड ज़्यादा रिजल्ट मिलता है, और टिकटॉक के रिलेटेड पे भी तकरीबन ओवरऑल यही है। तो अब हम बात करते हैं, सबसे पहला हमारा मॉड्यूल था फेसबुक एड्स। तो फेसबुक एड्स में सबसे पहले हम इसकी एड्स पॉलिसी जानेंगे। ये अच्छा, आपको मैं लेक्चर का कोई टाइम बढ़ाने के लिए ये सारी चीज़ें नहीं बता रहा, बल्कि इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं फील्ड में प्रैक्टिकली वर्क कर रहा हूँ और मैंने वर्क किया हुआ है। अगर जब तक आपको ये चीज़ें क्लियर नहीं होंगी, आप आगे प्रॉपरली काम नहीं कर पाएंगे। रीज़न क्या है कि आप फेसबुक पे एड्स में, आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि फेसबुक पे एड्स लगाते हैं ना, तो अगर आपने एक ऐड लगाई फेसबुक पे और उसमें आपने मेंशन कर दिया कि किसी जिम के लिए आप ऐड लगा रहे थे, तो आपने आपने इधर लगा दिया आर या कैन जो भी है, यू हेल्दी और प्लीज कम टू आवर जिम एंड बी स्मार्ट, आपने या हाँ ऐसे ही बन जाएगा। तो इसमें आप क्या करेंगे, आप देखें ये चीज़ जो मैंने आपको बताई है, आप इसमें जो लिखा है आपने, ये लाइन लिखी है ना, आर यू हेल्दी, तो इस चीज़ पे आपको फेसबुक जो है वो स्ट्राइक भेज सकते हैं, मीन्स कि आपको एड्स मैनेजर से ब्लॉक भी कर सकती है, और इस पे जो है आपको ये भी यानी कि आपका एड्स मैनेजर से ही ब्लॉक, या ऐड ही जस्ट ब्लॉक नहीं होगी बल्कि आपका पेज भी हो सकता है ब्लॉक। रीज़न क्या है, अब मैं आपको इसकी रीज़न बताता हूँ, ये एक एग्जांपल दे रहा हूँ। एग्जाम ये अगेन कंप्लीट, ये स्ट्रेटजी, ये स्ट्रेटजीज डिफरेंट हम डिस्कस करेंगे आगे। वजह क्या होती है कि जब आप कोई ऐड लगाते हैं, उसमें फेसबुक की पॉलिसीज ये हैं कि आप किसी के पर्सनल एट्रीब्यूट को हिट नहीं करते। अब आपने देखें, आपने जिम की ऐड देनी है, तो उसमें आप क्या करेंगे, आप फिर इसमें लिखेंगे कैन यू वांट टू, या यू वांट टू बी स्मार्ट। अब देखें, आप उसको कह रहे हैं कि आप स्मार्ट बनना चाहते हैं। अब एक जगह पे आपने वही चीज़ लिखी थी कि आप हेल्दी हैं तो स्मार्ट बनना चाहते हैं, हमारे इधर है, तो उन्होंने आपने उससे जब चेक क्वेश्चंस में की बात कि आर यू हेल्दी, बट वो उसकी किसी पर्सनल एट्रीब्यूट पे तो आपने बात की। तो इस सिनेरियो में फेसबुक क्या करता है, आपकी ऐड को ब्लॉक कर देता है, अच्छा रिजल्ट फेसबुक नहीं देता। तो इसके लिए आपको सबसे पहले मेटा की एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स और एडवर्टाइजिंग पॉलिसी पढ़नी होगी, जो कि लाजमी है। अगर आप जॉब के रिलेटेड मेरा ये लेक्चर देख रहे हैं, तो वहाँ पे आपको इंटरव्यू में क्वेश्चन ये वाला लाजमी होता है। अगर आप पर्सनली हैं, लाजमी है, लाजमी है, लाजमी है, लाजमी है, लाजमी ख्याल रखना होती है। तो सबसे पहले हमारे पास जो चीज़ है वो है पर्सनल एट्रीब्यूट के भी, किसी 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 के भी पर्सनल एट्रीब्यूट्स पे ऐसी बात नहीं करेंगे जो उसकी पर्सनल एट्रीब्यूट्स को हिट कर रही हो। इसके बाद कोई ऐसा सेंसिटिव कंटेंट नहीं हम लगाएंगे जो नहीं है, इस पे नहीं है, इस पे नहीं है, इस पे आप देखेंगे। इसको मजीद डिटेल देखना है तो आप इस पे क्लिक कर सकते हैं और इसको ओपन कर। और आगे अगर हम देखें, इधर ये कोविड, देखिए इधर ये कोविड 19 का भी है। कोविड कोविड 19 से मुराद ये नहीं है कि आप कोविड 19 के पर्सनल एट्रीब्यूट का बोला है, इसनल एट्रीब्यूट का बोला है, इसनल एट्रीब्यूट का बोला है, इसनल एट्रीब्यूट का बोला है, इसके बारे में ऐड नहीं लगा सकते। आप इसके वर्डिंग चेंज कर, क्लिक करें यहाँ, ये क्लिक करें, यहाँ पे डिटेल मजीद है। आप इसको जब आप पढ़ेंगे, आपको पता चलेगा किस चीज़ के मुतालिक आपने वर्ड यूज़ नहीं करने या पिक्चर यूज़ नहीं करनी। तो उसके बाद ये फिर इसकी ऑल्टरनेटिव भी आपको बताते हैं कि इसके ऑल्टरनेट वर्ड कौन से यूज़ करें। और इसके बाद देखें, आप कोविड 19 के रिलेटेड ऐड ऐसी नहीं लगा सकते जिसमें कोविड 19 के रिलेटेड प्रोडक्ट या ऐसी चीज़ें हों जो उसके अगेंस्ट हों, या क्रिप्टो करेंसी और प्रोडक्ट्स के रिलेटेड आप एड्स ऐसे नहीं लगा सकते। अब देखिए, बहुत से लोगों ने एड्स लगाई भी हुई हैं, उन्होंने फिर क्या किया हुआ है, इस पर क्लिक किया और इसमें इसके मजीद वो देखे इसके क्या पॉइंट्स है, कौन से वर्ड हम यूज़ नहीं कर सकते, कौन से वर्ड्स हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। आप भी इस पे क्लिक करके आगे इस पे चेक करेंगे। तो आपने लाजमी ये फेसबुक या मेटा एड्स पॉलिसी आप गूगल में सर्च करें, आपके पास आ जाएगी। एक दो लिंक्स ओपन कर लें पहले, उनमें से जो है दूसरे या तीसरे लिंक में ही से सारी डिटेल में मौजूद है। पहले लिंक पे
بیسک ڈسکرپشن ان کا موجود ہوتا ہے، دوسرے تیسرے پیج پہ یہ ڈیٹیل میں ہوتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے آ جاتا ہے کسی کے ریلیجن پہ، کسی کی کاسٹ پہ، کسی کے ذات اور رنگ نسل پہ آپ بات نہیں کر سکتے، کوئی آپ الکوہلک پروڈکٹ سیل نہیں کر سکتے، آپ جو ہے تمباکو ریلیٹڈ پروڈکٹس کے ریلیٹڈ ایڈز نہیں لگا سکتے، آپ اس پہ کوئی آن لائن گیمز یا آن لائن لونس کے ریلیٹڈ ایپس، اب آپ کہیں گے کہ یہاں تو پاکستان میں بہت سے لونس کے ایپ کے وہ آ رہے ہوتے ہیں، ایڈورٹائزنگ ویڈیوز آ رہی ہوتی ہیں، ابھی بھی یوٹیوب پہ ہو سکتا ہے آپ کو کوئی ایڈز ایسی شو ہوئی ہوئی ہوں، جو پاکستان میں بہت سی لون ایپس ہیں، لیکن وہ کیا ہے، انہوں نے کوئی نہ کوئی اس میں سے ڈیٹیل دیکھ کے اس کا سولوشن دیکھا ہوتا ہے، وہ ویسا ورڈ یوز کیا ہوتا ہے، تو یہ سارا آپ نے دیکھ لینا ہے، پرسنل ہیلتھ، الکوہولک، سوشل ایشوز، الیکشن پالیٹکس۔ اب الیکشن پالیٹکس سے یہ مراد نہیں ہے کہ آپ ایڈ نہیں لگا سکتے، دیکھیں ہمارے پولیٹیشین نے بھی پیڈ ایڈز لگائی ہوتی ہیں، لیکن اس میں آپ کسی کو کریٹیسائز نہیں کریں گے، آپ پازیٹیو وے میں لگائیں گے، یعنی کہ آپ اپنے بتائیں کہ میں نے یہ کام کیا ہے، کسی پولیٹیشین کا اگر آپ پیج کی ایڈ لگا رہے ہیں یا کچھ کام کر رہے ہیں، اس میں بتائیں کہ میں نے یہ کام کیا ہے، ایسے کیا ہے، لیکن کسی کو ہٹ نہیں کریں گے۔ اس کے بعد یہ ساری پالیسیز ہیں، آپ نے یہاں سے یہ پڑھ لینی ہے، ایڈورٹائزنگ اسٹینڈرڈس بھی دیکھ لینے ہیں، ایڈورٹائزنگ پالیسی چیک لسٹ بھی دیکھ لینی ہے، تاکہ آپ لوگوں کو یہ سارے چیزیں پتہ ہونا چاہیے، آپ جب ایڈ لگائیں تو آپ کو ایڈ میں کوئی بھی پرابلم نہ ہو۔ تو ادھر تک آئی تھنک آپ لوگوں کو کلیئر ہو گیا ہوگا فیس بک ایڈس کا بھی، بیسک سوشل میڈیا کا بھی۔ تو اب ہم ایک فیس بک ایڈس کے ریلیٹڈ کام کرتے ہیں، فیس بک کا اکاؤنٹ بناتے ہیں اور ایڈس بناتے ہیں، اس کے پریکٹیکل کام کی طرف جائیں۔ تو سب سے پہلے جن لوگوں کے فیس بک اکاؤنٹ نہیں بنے ہوئے، پہلے تو اوور آل ہمارے میرے خیال سے جو لوگ بھی آپ لوگ سن رہے ہیں، آپ سب کے فیس بک اکاؤنٹس بنے ہوئے ہوں گے، آپ کو آئیڈیا ہوگا، لیکن ہم کیونکہ بگنر لیول سے لے کے چل رہے ہیں تو ایک بار میں اوور بتا دیتا ہوں۔ آپ نے فیس بک سائن اپ لکھ لینا ہے، فیس بک سائن اپ لکھنا ہے، گوگل میں جا کے سائن اپ لکھ کے آپ اس کو سرچ کر لیں گے، سرچ کریں گے یہ آ جائے گا، ادھر آپ کلک کریں گے فیس بک لاگ ان اور سائن اپ، یہاں پہ کلک کریں گے تو آپ کے پاس آپ کی فیس بک آئی ڈی کریٹ کرنے کا آپشن آ جائے گا، جہاں سے آپ اپنی آئی ڈی کریٹ کریں گے، اور آئی ڈی کریٹ کرنے کے بعد سمپل آئی ڈی کریٹ کرنے کے لیے کوئی بہت لانگ وہ نہیں ہے، کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، سمپل سے دو چار سٹیپس ہیں جو کہ آپ نے فالو کرنے ہیں۔ اس میں آپ نے اپنا نیم، فرسٹ نیم، لاسٹ نیم، اپنی ڈیٹ آف برتھ لکھنی ہے، نیکسٹ کرنا ہے، آپ سے موبائل نمبر مانگیں گے، ایک کوڈ آئے گا ویریفیکیشن، وہ ادھر ایڈ کر دیں گے، میل آئی ڈی وغیرہ لگا دیں گے، آپ کو یوزر نیم کریشن کا آپشن آئے گا اور اوکے ہو جائے گی آپ کی فیس بک آئی ڈی۔ میں بھی میرے پاس ابھی نہ آیا کیونکہ میری پہلے والی فیس بک آئی ڈی لاگ ان ہے آلریڈی، اور اس پہ جو ہے شاید وہ نہ دے آپشن، اسے لاگ آؤٹ کرنا پڑے گا، اور لاگ آؤٹ میں ابھی نہیں کروں گا، تو میرے پاس انٹرنیٹ ایشو بھی آج آ رہا ہے، پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے، اور دوسرا یہ بھی ہے کہ میرے جو ہے پاسورڈ بھی ہے ابھی اس ٹائم مجھے یاد نہیں ہے، تو میں اپنا یہ چینج کروں تو وہ سارا ایشو ہو جائے گا۔ تو ابھی میرے پاس یہ دیکھیں، میرے پاس میری فیس بک آئی ڈی آ گئی، میں اس میں اپنی پروفائل ہی کرنٹلی اوپن کر لیتا ہوں تاکہ اس سے ہی آگے چلیں۔ یہ میرے پاس ایک کرنٹ لے آؤٹ آ رہا ہے، آپ سب کو نظر آ رہا ہوگا، جس میں یہ سائڈ بار پہ میرا پیج ایک شو ہو رہا ہے، اور یہ میں نے ابھی اپنی پروفائل اوپن کر لی ہے سمپل، تو یہ میری فیس بک پروفائل ہے، بٹ آفیشیل میرا پیج تو دوسرا ہے جس پہ میں موسٹلی پوسٹ کر رہا ہوتا ہوں، انٹرویو سے شیئر کر رہا ہوتا ہوں۔ تو اس سے ابھی میں دوبارہ اس پہ آتا ہوں، یہ ہوم پہ، یہ سائڈ بار آپ کو نظر آ رہی ہے، یہاں پہ محمد ارسلان، فرینڈز، سیو، پیج اور فیڈ، یہ ساری چیزیں نظر آ رہی ہیں۔ نیچے شارٹ کٹ میں آپ کو میرے یہاں پہ پیج نظر آ رہے ہوں گے، جو میرے پیج ہیں ڈفرینٹ بنے ہوئے یا جن پہ مجھے ایڈمن بنایا ہوا ہے کچھ دوستوں کے ہیں۔ تو ہم کیا کرتے ہیں ابھی، میں آپ کو اس کے بیسک سے بتانا تو پیج پہ بتاتا ہوں۔ آپ نے سب سے پہلے ادھر پیج پہ کلک کرنا ہے، میں یہ بات کر رہا تھا، یہ ہمارے پاس پیج اوپن ہو گئے، میں نے پیج پہ کلک کیا تو میرے پاس یہ میرے پیج آ رہے ہیں سارے، اور اب میں کیا کروں گا، یہ کچھ پیج میرے ہیں، کچھ میرے دوستوں کے، کچھ میرے کسٹمرز کے جن پہ مجھے ایڈمن بنایا گیا ہے۔ تو ابھی کے لیے میں یہ کروں گا کہ میں یہاں پہ آ کے کریٹ نیو پیج پہ کلک کروں گا، کریٹ نیو پیج، اور اس کے بعد یہاں سے میں پیج ایک کریٹ کر لوں گا۔ یہ پیج کریٹ کرنے کا آپشن آ گیا، یہاں پہ میں لکھ لیتا ہوں مائی فرسٹ پیج۔ ابھی پیج آ گیا، یہاں پہ کیٹیگری ہو گیا، اب میرا کیٹیگری جس چیز کے ریلیٹڈ ہے، انٹرٹینمنٹ کے ریلیٹڈ ہے، بزنس کے ریلیٹڈ ہے، میری کیٹیگری جو ہے
हेल्थ के रिलेटेड है, एजुकेशन के रिलेटेड है, जो भी है मैं सर्च करूँगा। तो मैं इधर अभी एजुकेशन सर्च करता हूँ, जो एजुकेशन के रिलेटेड कोई कैटेगरी मिलती है क्या। ये बेसिकली कैटेगरी आपको हेल्प करती है आपके पेज को ग्रो करने की। एक देखिए जो चीज़ मैंने आपको बताई कि आप ऐड यहाँ पे इंटरेस्ट बेस लगाते हैं और आपके ऑडियंस आपके इंटरेस्ट के रिलेटेड आपको सजेस्ट की जाती है, और आपके ऑडियंस को उनके इंटरेस्ट के रिलेटेड एड्स सजेस्ट की जाते हैं, पेज सेलेक्ट किए सजेस्ट किया जाता है। तो यहाँ से एक किस्म की ये हेल्प कर देती है पेज को कि ये किस ऑडियंस के रिलेटेड पेज है। तो यहाँ पे आपने कैटेगरी लिख देनी है, इसमें बायो में आपने इसको निकल लिया कि ऑनलाइन और इंट्रोडक्शन लिख देना एक छोटा सा, जो कि ये हम एक डमी सा अगर लिख देते हैं भाई, ये देखिए मैंने ऐसे डमी सा लिख दिया और माई फर्स्ट पेज पेज के नीचे यार। इसके बाद मेरे पास ये क्रिएट का ऑप्शन आ जाएगा अभी, क्योंकि मैंने इसको सही तरह से सिलेक्ट नहीं किया, एजुकेशन वाला आया नहीं था नेटवर्क स्लो होने की वजह से। तो ये आ जाएगा और इसके बाद क्रिएट पेज पर क्लिक करेंगे, एक पेज क्रिएट हो जाएगा। अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे पेज को आपने ऑप्टिमाइज कैसे करना है और उस पेज पे एड्स किस तरह से लगानी है। ये फिर एड्स हम एक प्रैक्टिकली एड्स भी प्लेस करेंगे और उसके फिर रिजल्ट्स भी मेजर करके डिस्कस किए जाएंगे। अब ये देखिए क्रिएट का ऑप्शन आ गया। तो आज के लिए इतना ही। आप अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा, और नेक्स्ट वीडियो देखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मेरी कोशिश होगी उसको मैं शॉर्ट करूँ, ये वीडियो भी काफ़ी लेंथी हो गई है इंटरनेट की वजह से, बट अगले लेक्चर में इंशाल्लाह हम इसको मज़ीद शॉर्ट करेंगे ताकि कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा मॉड्यूल्स कवर हों, जो कि इफ़ेक्टिव टाइम आपका सर्व हो, एक्स्ट्रा टाइम में आपका यहाँ पे नहीं